रखना स्वर्ग में जब तुम रहोगे। यीशु मुझे याद रखना। यीशु मुझे याद रखना स्वर्ग में जब तुम रहोगे। यीशु मुझे याद रखना। अब तुम मेरे संग स्वर्ग में रहोगे। अब तुम मेरे संग स्वर्ग में रहोगे। यीशु मुझे याद रखना स्वर्ग में जब तुम रहोगे। यीशु मुझे याद रखना। की दौलत में हासिल किया, सारी दुनिया को धोखा दिया। दुनिया की दौलत में हासिल किया, सारी दुनिया को धोखा दिया। क्या फायदा, मैं कुछ भी न पाया। क्या फायदा, मैं कुछ भी न पाया। कर तुझको ही मैं खो जाऊं। यीशु मुझे याद रखना स्वर्ग में जब तुम रहोगे। यीशु मुझे याद रखना। पर जब मैं देखा तुझे, मेरे गुनाह मुझको याद आए। इस क्रूस पर जब मैं देखा तुझे, मेरे गुनाह मुझको याद आए। मेरे मसीहा मेरे खुदा, धो दे तू ये सारे पाप। यीशु मुझे याद रखना स्वर्ग में जब तुम रहोगे। यीशु मुझे याद रखना।
तेरी सूली को मैं देखा करूँगा, शांति की धारा बहेगी यहीं से। तेरी सूली को मैं देखा करूँगा, शांति की धारा बहेगी यहीं से। तूने लहू दे मुझको बचाया, तूने लहू दे मुझको बचाया। यही है मुक्ति का राज। यीशु मुझे याद रखना, स्वर्ग में जब तुम रहोगे। यीशु मुझे याद रखना। यीशु मुझे याद रखना, स्वर्ग में जब तुम रहोगे। यीशु मुझे याद रखना। यीशु मुझे याद रखना। यीशु मुझे याद रखना। हे प्रभु, आपके दुख भोग की खातिर इस आत्मा पर और पूरे संसार पर दया कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। Please be seated. Your Grace, Archbishop Sebastian de Veraj, Your Excellency Bishop Chaco, Lord Bilingual, dear fathers, brothers, sisters, and my dear friends. It is very apt to say, along with
St. Paul in his second letter to Timothy, chapter 4, verses 7. I have fought a good fight, I have finished my race, and I have kept the faith. Today, we are here to join the last journey with Brother Polycarp Anthony Turkey, a Swede, who fought a good fight and finished his race successfully, keeping his faith, and now enjoys his eternal glory. Brother Polycarp was a person of difference in his own style and his way. He was the first among the Indian brothers to do his commerce and served the province as proprietor in Indore for many years and also Mumbai region for a year. He was a brother committed to his assigned tasks, being serious about his religious life. Mr. Basil Baksaria, an army official in Mau, writes expressing his condolences at the demise of Brother Polycarp. I quote, "He was a simple, hardworking, faithful, zealous, outstanding performer who completed his assigned tasks sincerely. Certainly, he has reached his eternal abode. Today, what I am is just because of some missionaries who toiled selflessly and fully sacrificed their lives for my sake. But the Polycarp was one of them." I unquote. Yesterday morning, Brother Polycarp Anthony Turkey, having completed his journey here, quietly went over to the Lord of Life, who had called him 65 years ago to the Society of the Divine Word. Since a few years, Brother Polycarp was being confined to his room at St. Joseph's Home, Indore. He was not maintaining a good health due to old age. Brother Polycarp was born to late John Turkey and late Mrs. Sabina Lekra on September 29, 1933 at Jodhpur, presently in Raurkela Diocese. He was baptized and was given the name Anthony in Jodhpur Parish Church. The family consisted of 4 boys and 3 girls. Already when he was 3 years old, his eldest brother had become a school teacher at the Jodhpur school. At the age of 6, he encouraged him to begin education. On the completion of middle school, his father sent him to Hamirpur for high school studies. He was accepted as a candidate for brotherhood and reached Catholic Ashram Palna in 1958. In 1960, he completed his postulancy and began his novitiate in Catholic Ashram Palna. He took the name Polycarp in the novitiate and made his first vows on September 8, 1962, and the final vows in Catholic Ashram Palna on September 8, 1978. This year, we were to celebrate his diamond jubilee of religious profession. Right from the period of postulancy, Brother was involved in the works of Sapraja Press, which he continued as a young brother, first as a hand compositor and then later as a proofreader. He spent almost 12 years from 1962 to 74, during his final years he was the manager of the press. While serving as a manager of the press, he also completed his Bachelor of Commerce degree from Gujarati College, Indore. In 1974, he was transferred to South Indian province to take charge of the mission as a mission proprietor based in SVD House, Bandra, Mumbai. In June 1975, he was transferred back to Indore as the provincial treasurer of INC province. He held his office till the middle of 1984, following which he was transferred as a proprietor of Catholic Ashram Palna for 3 years. I was also fortunate that when I was in Palna, he was a proprietor of Catholic Ashram. When he completed his 1 day in Catholic Ashram Palna, he was transferred as a proprietor of Adishur Vidyalaya Mau. From here, he was transferred back to the Sebastian Indore as one of the standards, and from 19
had a very generous heart for the poor and the needy, and was very ready to assist them in their need. Number of people have acknowledged that he has been very generous, and because of his assistance, number of people got educated and they only know him. We have lost a generous, a serious, religious brother. Today, as we bid farewell to him, we thank God for all that God accomplished through him as a divine testimony in IMC province, and pray that God may forgive all his sins and grant him eternal glory. We thank Father Joman for enlightening us about the colorful life of Brother Polycarp. He served the society and the church 60 years, and we ask the Lord for eternal reward to be granted him. We also ask the Lord for forgiveness for his failings and for our failings, and ask the Lord to have mercy upon us. Let us all together say, हम सब मिलकर बोले, ये भाइयों बहनों, मैं सबसे बीमार ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैंने दुआएं देने मरियम से, सब सदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें।
हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र की मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। तेरे सेवक ब्रदर पॉलीकार्प ने ख्रीस्त के विश्वास करते हुए प्राण त्यागे हैं। ये उन्हीं के द्वारा पुनरुत्थान का आनंद भी प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगायुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके जीवा होठों में हो, ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। The first reading, a reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, earthly in the heavens. So we are always confident, even though we know that when we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Yes, we do have confidence, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. So, whether we are at home or away, we make it our end to please Him. For all of us must appear before the judgment seat of Christ. So, each may receive recompense for what has been done in the body, whether good or evil. The Word of God.
A reading from the Holy Gospel according to John. Chapter 12, verses 23 to 28. Jesus answered them, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Very truly I tell you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains just a single grain. But if it dies, it bears much fruit. Those who love their life lose it, and those who hate their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there will my servant be also. Whoever serves me, the Father will honor. Now my soul is troubled, and what I should say? Father, save me from this hour. No. It is for this reason that I have come to this hour. Father, glorify your name." Then a voice came from heaven, "I have glorified it, and I will glorify it again." The Gospel of the Lord. परम आदरणीय बिशप चाको Rotmerical, Provincial Father Jomon, Vice Provincial Father John Makla, Fathers, Brothers, Sisters, Brother Polycarp के प्रियजनों और शुभचिंतकों, संत पौलुस अपने पत्रों के द्वारा हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। पत्र लिखते हैं कोरिंथियंस को, एफिशियंस को, गैलेशियंस को, कई समाज के कम्युनिटीज़ को पत्र लिखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पत्र, और हमें अपना अनुभव बांटते हैं और अपना विचार, अपना सुझाव, ये सब हमारे सामने इन पत्रों के द्वारा हमारे सामने रखते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार संत पौलुस सबसे आग्रह करते हैं कि हमें कठिन मेहनत करना चाहिए। जो काम नहीं करता है उसको खाने के उसको भोजन मत दे दो, इस प्रकार भी बोलते हैं संत पौलुस। और हम देखते हैं कि संत पौलुस क्या क्या काम करते थे। टेंट मेकर थे, वो तंबू खड़ा करना वो एक प्रकार का काम वे करते आ रहे थे। तो इसका उदाहरण हमारे सामने रखते हुए कहते हैं कि मेहनत करो और अपना काम जो भी है विशेषकर सुसमाचार को फैलाना है, लेकिन ऐसे आलसी सुस्त मत रहो। इस प्रकार वो बताते हैं कि ये टेंट मेकर थे, तंबू खड़ा करना एक बहुत सुंदर उदाहरण है। इसलिए आज के पहले पाठ में वे कहते हैं इंग्लिश में टेंट ऑन अर्थ, जहाँ जहाँ हमको जाना है वहाँ टेंट लगाते हैं। लेकिन आजकल तो हमारे लिए सब बढ़िया बढ़िया घर बना चुका है, टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक ऐसा सिंबल है, एक उदाहरण है जहाँ भी हम अपना दायित्व जिम्मेदारी निभाने के लिए जाते हैं, हमारे लिए बहुत टेंट है। लेकिन एक समय आ जाता है कि इस टेंट को हमेशा के लिए निकालना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ता है।
इसलिए आज के पहले पाठ में संत पौलुस कुरिन्थियों को समझाते हैं कि टेंट ऑन अर्थ फोल्डेड अप। हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे ब्रदर पोलीकार्प ने बहुत सारी जिम्मेदारियों को बहुत सारा काम दायित्व को निभाते अभी इस धरती पर जो टेंट था उसको निकालते हुए स्वर्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो भी कार्य किया जिसके बारे में जानकारी फादर जोमन ने हमारे समक्ष रखा कि बहुत बड़े बड़े काम किया ब्रदर पोलीकार्प ने। इसलिए आज के पहले पाठ में संत पौलुस समझाते हैं कि ये काम वो काम ये करते करते किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए। वी आर इंटेंट ऑन प्लीजिंग हिम। इसलिए हम जब जीवित हैं हम देखते हैं कि हमारा टेंट कैसा है, कहाँ है और किस प्रकार हम अपनी सेवा कार्य को कर रहे हैं। आर वी इंटेंट ऑन प्लीजिंग द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि आज के जो समाचार में भी प्रभु यीशु इसी प्रकार बताते हैं कि if a man serves me, he must follow me. If a man serves me, he must follow me. And if anyone serves me, my Father will honor him. तो हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु की सेवा करना चाहते हैं तो उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा और जो उनके पद चिन्हों पर चलेगा उसको बहुत सम्मान और आदर और अनुग्रह पिता ईश्वर देता है। यह अनुभव हम स्वयं पाते हैं और दूसरों की ओर नजर लगाकर देखेंगे तो वे भी पाते हैं। जब हम देख रहे हैं हमारे प्रिय ब्रदर पोलीकार्प की एसपीडी ब्रदर के रूप में, डिवाइन वर्ड मिशनरी के रूप में कठिन मेहनत किए। कई जिम्मेदारियों को जो फादर जोमन ने बताया उसको मैं और दोहराना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि हर बार हर एक मिशनरी के बारे में हम बार बार बताते रहेंगे ताकि हमारे जवान यंग ब्रदर्स है उनको तो मालूम नहीं है। इन बातों को याद रखना पड़ेगा। आज हम ऐसी परिस्थिति में टुडे वी आर हियर ऑन दिस ब्यूटीफुल कंफर्टेबल स्टेज, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ आवर ब्रदर्स, fathers and our missionaries, pioneers. They have been very pioneers and the Lord has blessed us. That's why we are going on. And St. Paul encourages us, and we see our own brothers and priests, very especially as we honor our brother Polycarp, who has been a hard worker. He always wanted to work something and to be a province procurator. वो खजाना को संभालना ये आसान बात नहीं है। ये प्रोविंस का और कई मैनेजर के रूप में प्रेस का काम संभालना आसान बात नहीं था। बड़ा पद ये सब है। बड़े पद पर रहते हुए उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत काम किए हैं। विशेषकर मैं कृतज्ञतापूर्वक याद करना चाहता हूँ ब्रदर पोलीकार्प का महान योगदान प्रोविंस प्रोग्रेटर ये सब है। साथ ही साथ दिल्ली में सद्भावना, हमारे सद्भावना वो कम्युनिटी वो बिल्डिंग का निर्माण के लिए उनका महान योगदान है। मैं 2-3 बार जा चुका हूँ। उस समय खड़े वो बिल्डिंग का सुपरवाइज कर रहे थे। वो बिल्डिंग के लिए फादर एंटो के साथ वे पायनियर थे वहाँ सद्भावना दिल्ली में। उनका मन इतना लग गया उधर दिल्ली में। जब मैं प्रोविंशियल था उनसे आग्रह किया ब्रदर जी आप वापस आ जाइए, तो बोला कि नहीं दिल्ली मुझे अच्छा लग रहा है। तो वहीं रहना चाहते थे लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी कभी और हमने आग्रह किया इधर आने के लिए। तो हम देखते हैं कि कठिन मेहनत करने वाले हमारे ब्रदर पोलीकार्प बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे। जोर से हमारे जैसे बोलते नहीं और लेकिन बहुत सॉफ्ट जेंटल ब्रदर थे। बहुत जेंटल ब्रदर थे लेकिन सटल जोक्स बोलते थे। हम
सोचे कि हम में से कोई कोई दो जोर से हंसते हैं, दो जोर से जोक्स बोलते हैं, लेकिन वो सटल है, बहुत सटल और वेरी शार्प थे। हम सोचते हैं बहुत चुपचाप शांतिपूर्वक के ब्रदर, लेकिन जो बोलना है वो सीधे बोलते थे, सबके सामने जो बोलना है वो शांतिपूर्वक थे। मैंने कभी नहीं देखा जोर से किसी को चिल्लाना, ये नहीं देखा। शांतिपूर्ण जीवन उन्होंने बिताया, कठिन मेहनत किया और हम देखते हैं कि इस प्रकार उनका स्पिरिचुअल लाइफ का अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए धार्मिक जीवन और रिलीजियस लाइफ पर बहुत सीरियस थे। जैसे फादर ने बताया कैसे पहन के आते थे, हम इसमें हम देखते हैं कि मिस्सा के लिए है तो कैसे यूनिफॉर्म जैसा ड्रेस कैसे पहन के आते थे, बहुत डिसिप्लिन थे ब्रदर। और यहाँ प्रोविंशियल आने के बाद हमने सोचा है कि जवान लोग ये मेरी सेवक के जैसे सकृष्टि का काम करें, लेकिन ब्रदर हमेशा आते थे तो उनके सामने जाने के लिए कोई जाने के लिए प्रयास नहीं किया। वो ब्रदर मेरी सेवक सकृष्टि के समान चलने फिरने में थोड़ा बहुत दिक्कत थी, फिर भी ब्रदर काम छोड़ा नहीं। वो उन्होंने बोला कि ये मैं करूँगा, आप लोग सब पीछे रहो, इसलिए आप लोग सब छोड़ दिया, बच्चे आप ही करो। इस प्रकार बहुत प्रेयरफुल डिसिप्लिन थे हमारे ब्रदर पोलिका। इन सभी बातों को याद करते हुए हम उनको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, जो जीते थे अभी देते थे, अभी कृतज्ञतापूर्वक हम उनकी याद करते हुए उनके महान योगदान के बारे में मनन चिंतन करते हुए हमारी प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें स्वर्ग में स्वागत करे, उन्हें आनंद सुख और शांति प्रदान करें। और उनके प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें भरपूर मात्रा में आशीष दें, क्योंकि उन्होंने ब्रदर को भेजते हुए यहाँ प्रोत्साहन देते हुए अपने प्रिय ब्रदर को यहाँ अपने संस्था के लिए समर्पित किया। कि उन सभी प्रियजनों को धन्यवाद देते हुए उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज के दिन हमारी प्रार्थना है, जो ब्रदर जी जो सेवा कार्य जिस प्रकार किया उसी प्रकार हम सब तन मन लगाकर अनुशासन पूर्वक अपने मिशन कार्य को सही ढंग से सुचारू रूप से करने के लिए ईश्वर आप पर कृपा करें। आमीन।
भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तेरे सेवक ब्रदर पोलिकार की मुक्ति के लिए हम यह बलिदान अर्पित करते और तेरी दया की याचना करते हैं। इस जीवन में ये तेरे पुत्र को अपना प्रेमी मुक्तिदाता मानते थे, अब ये उन्हें दयालु न्यायकर्ता के रूप में पाए जो युगायुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने हमें इनके द्वारा धन्य पुनरुत्थान की आशा दी है, ताकि जो लोग अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं वे अमर मृत्यु की प्रतिज्ञा द्वारा दिलासा प्राप्त रहे। हे प्रभु, वास्तव में तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि विकास है, और इस लौकिक निवास के समाप्त हो जाने पर स्वर्ग में उनके लिए शाश्वत निवास तैयार किया जाता है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को
जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात मुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसीलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे मनोपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे। ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे द्वारा अनवरत करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उद्भव, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाली और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरणों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनके सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे कुलमंडल के बलि संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सर्वसंत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा सभी वृत्ति के समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। अपने सेवक ब्रदर पॉलीकार्प की स्तुति ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें वर्त है कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। उस दिन प्रभु यीशु मृत शरीर को फिर से जीवित करेंगे और हमारे नाशवान शरीर को अपने तेजोमय शरीर के अनुरूप बना देंगे। मृत भाई बहनों को उन सबों के भी जो तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, दयापूर्वक अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं। वहाँ हम सब एक साथ तेरे महिमा के दर्शन से अनंत का तृप्त होते रहेंगे। उस समय हमारे ईश्वर तो हमारा सब आंसू पोंछ देगा।
क्योंकि तू तेरा यथार्थ दर्शन करेंगे, तेरे अनुरूप बनकर अनंत काल तेरी स्तुति करते रहेंगे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबको सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और अपनी परीक्षा में न डालना, हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर तो चिढ़ा और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की बेटे संसार की पाप पर देता है, ईश्वर की बेटे संसार की पाप पर देता है, अब पर दया कर। ईश्वर की बेटे संसार की पाप पर देता है, हमें शांति प्रदान करे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे।
उनकी अंतिम यात्रा में शरीर बने आए सभी को जयसु तथा ब्रदर पोलिकार्प के स्वजनों को दिल की गहराइयों से हमारी संवेदनाएं। मैं हमारी INC मध्य भारत प्रोविंस की ओर से सर्वप्रथम आभार मानता हूँ भोपाल धर्म प्रांत के मां धर्माध्यक्ष दुराई राज्य का, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति और खास करके हृदय स्पर्शी प्रवचन द्वारा ब्रदर पोलिकार्प को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बिशप स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो धर्म के हमारे बिशप चाचा जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ब्रदर पोलिकार्प की अंतिम यात्रा का धन्यवाद का मिसा बलिदान चढ़ाकर उनकी आत्मा शांति के लिए दुआएं प्रार्थना की। बिशप आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर खापरा का, जो अपनी अमूल्य सेवाएं काफ़ी लंबे अरसे से ब्रदर को देते आए हैं और अंतिम समय तक वो देते रहे हैं, उनको धन्यवाद। साथ में आभार मानता हूँ सिस्टर प्रेमशिला और सिस्टर अर्पिता का, जिनकी महत्वपूर्ण सेवाएं ब्रदर के लिए थी। होली स्पिरिट सिस्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ब्रदर का कॉफिन सजाया है, धन्यवाद सिस्टर्स। साथ में मॉन्टर की सजावट के लिए प्रेजेंटेशन सिस्टर्स, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। फादर राजेश तिर्की होली स्पिरिट पैरिश के पल्लीपुरीत का, आपकी अगुवाई में ब्रदर की अंतिम यात्रा की क्रिस्तियान की समस्त तैयारियों के लिए सहर्दय धन्यवाद। फादर के डायरेक्टर फादर जॉनी डिसूजा और स्टाफ तथा स्टूडेंट्स का शुक्रिया, जिन्होंने सेमेट्री में दफन की समस्त तैयारियों को अंजाम दिया है, थैंक यू। विद्यालय के डायरेक्टर और स्टाफ तथा स्टूडेंट का धन्यवाद, जिन्होंने आज के क्रिस्तियान में भक्तिमय गीतों द्वारा ब्रदर पोलिकार्प को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। फादर क्लारेंस शॉपिंग का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ब्रदर की ओबिचुरी तैयार की है। फादर एंटनी कनुस्वामी और सब प्रकाशन स्टाफ का आभार, जिन्होंने फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ऑनलाइन सुविधा दी है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा विशेष करके ब्रदर के स्वजन जो उड़ीसा में अन्य जगहों पर वो देख सके आज का ये लाइव मिसा बलिदान। मैं विशेष तौर से मिस्टर ओंकार और राम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन दोनों ने ब्रदर की बहुत सेवा की अंतिम समय तक, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में ब्रदर पोलिकार्प की अंतिम यात्रा में भाग लेकर उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आए आप सभी महानुभावों का आत्मीय हृदय की गहराई से धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र ने हमें इस संस्कार में दिव्य संबल दिया है। इसी से बल पाकर हमारे भाई ब्रदर पोलिकार्प ख्रीस्त के अनंत भोज में भी सहभागी बन जाए, जो युगायुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सारी साधना के ईश्वर ने अपार प्रेम से मनुष्य की सृष्टि की, वही ईश्वर अपने एकलव्य पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा विश्वासियों को पुनर्जीवन की आशा प्रदान करे। ईश्वर हम जीवितों को पापों की क्षमा और मत विश्वासियों की ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान करे। हम यह दृढ़ विश्वास करते हैं कि क्रिस्त मृतकों में से सचमुच जी उठे, इसीलिए हम भी क्रिस्त के साथ सदा सर्वदा जीवित रहेंगे। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा।
हे प्रभु करुणा सागर, तू निर्दोषियों का आश्रय और उन्हें सांत्वना देता है। तू अपने दुखी जनों को सांत्वना दिलासा दे। तू ही जीवन दाता और मृत्यु विजेता है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। मृतकों को शांति अनंत जीवन पाए, मृतकों को शांति अनंत जीवन पाए। अंतिम दिन में हे प्रभु महिमामय तू जब आए, तेरे दाहिने ओर सर्व आशीष पाए। सदा सर्वदा और अनंत काल तक। स्वीकार करना प्रभु वर मेरा, विश्वास होगा सामने दासों को परिणाम सारा
स्वीकार किया
purificate him. Wait. Rumal. White rumal. Wait a second. This is the one. This is not it. Lift. Push. Where is it? Just here. Okay, push. Just a minute. Okay? Push. What do you take? Take these flowers. That first. वो भी ले लो. ये आप पकड़ो. Down you press. Down. मैंने करवा रहे हैं. Here's more. पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे प्राण को You have to hold the frame also better. Come one side.
go there. Enough. Keep it straight. Bottom. Okay. Little more can come this side. Lift it more. From the front. Enough. हे प्रभु यीशु क्रिस्त, 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारे भाई ब्रदर पोलिकाप का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहेगा जब तो जो पुनरुत्थान और जीवन है इन भाई को पुनर्जीवित और आलोकित न कर दे। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहे जहाँ तो युगानुयुग जीता रहता है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे भाई ब्रदर पोलिकार्प को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर उस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों में से सर्वप्रथम ख्रीस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि ख्रीस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने भाई ब्रदर पोलिकार्प के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह इनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाएं और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र यीशु को मृतकों से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। अपना वाक्य है, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भाई ब्रदर पोलिकार्प को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। आप अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इन्होंने क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों और उपकारों के लिए प्रार्थना करते हैं और तू इन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो अपने प्रिय जनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तू कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सबको जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्र हुए हैं, तू अपने प्रतापमय राज में बुला ले। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से यह उत्तम प्रार्थना करें जिसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया और हमारे मृत भाई ब्रदर पोलिकार्प बारंबार बोले हैं। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य
राज्य आवे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। माता मरियम अपने सेवक ब्रदर पोलिकाप की आठ रक्षा करें। प्रणाम मरिया। परमेश्वर की मां प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे जैसे आदि में थी अब अनंतकाल सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जीवन मैंने अपना त्यागा तब चरणों में अब आया। जीवन मैंने अपना त्यागा तब चरणों में अब आया। देवदूतों के संग में लाया, देवदूतों के संग में लाया। पाप पुण्य है जो भी कमाया। जीवन मैंने अपना त्यागा तब चरणों में अब आया। दिल का मैला था मैं अकेला, दिव्य ज्योति से अब भरमाया। दिल का मैला था मैं अकेला, दिव्य ज्योति से अब भरमाया। छोड़ जगत को अब मैं आया, तेरी दिशा प्रभु अब मैं आया। जीवन मैंने अपना त्यागा तब चरणों में अब आया। जीवन मैंने अपना त्यागा तब चरणों में अब आया। देवदूतों के संग में लाया, देवदूतों के संग में लाया। पाप पुण्य है जो भी कमाया। जीवन मैंने अपना त्यागा तब चरणों में अब आया। स्वीकारो भगवन मैं आया, पाप भरा ये जीवन लाया। स्वीकारो भगवन मैं आया, पाप भरा ये जीवन लाया। रिश्ते नातों को बिसराया, स्वर्गांगन में अब मैं आया। जीवन मैंने अपना त्यागा तब चरणों में अब आया। जीवन मैंने अपना त्यागा
तव चरणों में अब आया। देवदूतों के संग में लाया, देवदूतों के संग में लाया। पाप पुण्य है जो भी कमाया, जीवन मैंने अपना त्यागा तब चरणों में अब आ